शुक्ला जी ओके यस यस अनिल अनिल ठीक है सो ऑल you have all these messages okay yes 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 so अब मैं इसको रख सकता हूँ राइट ओके ये फोटोग्राफ्स मैं दिखाऊंगा अपने दोस्तों को जो पॉलिटिक्स में हैं नो 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 हर आदमी का नियत प्लेस होता है ओके 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 good luck god bless you all god bless yes so आई होप कि अब और ज्ञान नहीं चाहिए आप लोगों को नाउ टुडे इज फेयरवेल राइट यस एंड as I always say, you know, society is constraining to human life. Yeah, na? Society put constraint. So आज भी कल तो मैंने कल आप लोग का था yesterday I could not manage because some personal familial you know occupancies today I managed है ना okay so ठीक है farewell is an expression of parting but we are not going to part here right we are not going to part in this process you know my hand holding will continue till you are successful in your life right not only in this exam till you are successful in your life I mean success is also very continuous process whenever you will need me will recall me I will always be there और अभी भी लास्ट वीक भी किसी स्टूडेंट ने याद किया तो मुझे जाना मतलब मॉर्निंग की फ़्लाइट से गया इवनिंग की फ़्लाइट से वापस आया लेकिन ही वॉज इन नीड सम नीड तो आई वेंट देयर है ना तो दिस विल कंटिन्यू एंड जस्ट डू वेल अच्छा करिए दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस यू नो प्रिपरेशन एज वेल एज लाइफ है ना एज फार एज योर प्रिपरेशन इज कंसर्न तो फर्स्ट फेज आई गेस इज ओवर नाउ फर्स्ट फेज दैट इज लर्निंग फेज है ना learning particularly sociology and most of you have completed your general studies also right and in three step process which I had suggested you in the beginning too second phase is that of revision है ना revisionary reading and learning at my own pace yes or no अभी तक तो whatever you learned you know whatever I explained that you noted and you learned right but now you have to do revision and you have to make short notes isn't it as per your compatibility that should not be copied from others and that should not be similar also isn't it maybe some students need to write 20 points in a particular topic some other will write only 10 points isn't it depending on the recall ability and look not everyone can have you know similar aptitude and you know that recall ability isn't it problem solving ability
So, but yes, everyone can become IAS, है ना? At their own pace, है ना? So, start revision, do good revision, and then performance. Third step, I had suggested in the beginning also, that is performance, isn't it? Then after revision, now you have to be conscious and serious about performance, and you are free. You will have to manage time. You will have to follow me now for getting your answers corrected. For suggestions, you can come to class also. You know, in the evening, daily I'm here for 1 hour, right? Last 2 weeks, may thoda sa disturbance was there in the family life, as I had shared with you that uh, mother-in-law's surgery, bypass surgery. So, thoda sa like routine was disturbed, but now things are on track, right? So, first learning, second revisionary, reading and learning, and third performance, isn't it? Now you have to be aggressive on performance, but with aggression, discipline. With aggression, discipline. Discipline should also be there, right? Discipline should also be there. You have to revise and you have to be reflective on the content which you have learned. Just like you rely on that education psychology. In education psychology, the process of reflection is very important for solution, right? The person with high aptitude, good aptitude, is the person whose reflective ability is high, isn't it? And that reflective ability will improve with revision of minimum, not maximization, not maximization. And trust me, you are supposed to write minimum, right? Minimum, not maximum. I guess we concluded our class before this mains exam, right? After mains, many students, particularly, there are many comments, many responses, on this year mains ka review and all, which I did. But some students who had switched from other subjects, like one student from physics, some students switched from mathematics, right? So, one student, I would like to share his message. Earlier, I mean, with physics, he used to manage hardly 250 to 300 marks question in exam, right? And with sociology this year, he managed 480 marks. 480 marks. Isn't it? Managing 480 marks directly from the sources, right? Let me find out his message. I guess that would be motivating. There are many messages, it's difficult to find. But yes, like trust me, what I say, reflecting on the syllabus, not in compartmentalized manner, but reflecting on the syllabus, you will be able to manage maximum questions. You will be able to manage maximum questions. Questions are not compartmentalized, right? 60% question would be hybrid in nature, where you will have to reflect on the whole syllabus, isn't it? And for that, you will have to have good reflective ability, not only recalling content related to particular topic, but reflecting on the whole syllabus, right? So, abhi just focus on improving your reflective ability. Just focus on improving your reflective ability. Reflection is very important. कई बार मतलब आई हैव रिपीटेडली सेड, और ऐसा मेरा कोई दूसरा सेंस नहीं होता जब मैं कहता हूँ कि सिलेबस इज गॉड. आई मीन, you should treat syllabus like God. You should have orientation the way you are oriented towards God, isn't it? Getting your point. Different topics in syllabus, kind of different forms of God, isn't it? So you have to worship. Getting your point. You will have to reflect. You will have to worship, and then with worshipping, over the period of time, your reflective ability will improve, right? इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक बात याद आ रहा है अभी. Like Draupadi was very, at times angry on Krishna, right? Krishna के ऊपर, when Kauravas lost their kingdom in that game of क्या? Sorry, Pandavas. Pandavas lost their kingdom कैसे? युद्ध क्रीड़ा.
क्या बोलते हैं उसको, द्वित। अच्छा, शुक्ला जी, और भी शुक्ला जी हैं जानते हैं, राइट। सो आई मीन इन दैट गेम दे लॉस्ट, है ना। And Draupadi complained, after that event, she was very angry and she complained to Krishna कि आपके होते हुए हम हार गए, आपके होते हुए हमारा साम्राज्य चला गया, आप काहे का भगवान हो, क्यों भगवान, कैसे भगवान। So Krishna humbly replied कि none of your husbands, I mean those 5 Pandavas, none recalled Krishna during that process. जब दुर्योधन ने बोला कि भाई मेरे तरफ से जो डाइस है वो मेरे मामा फेंकेंगे, तो उस समय पांडवाज भी, कृष्णा भी थे प्रेजेंट, कृष्णा को बोल सकते थे कि भाई मेरे तरफ से कृष्णा आएंगे, है ना। लेकिन उनकी रिफ्लेक्टिव एबिलिटी काम नहीं करी, वो ध्यान ऐसा, उनको अपने पावर पे घमंड हो गया था, घमंड था कि नहीं हम तो जीत ही जाएंगे, है ना। तो कभी ऐसा घमंड नहीं करने का कि बस हो गया काइंड ऑफ, ऑलवेज यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग द मिनिमम, और जहां घमंड होगा वहीं पे डिफीट, इजंट इट। जैसे पांडव हार गए वैसे ही, है ना। तो वही गॉड से, सिलेबस इज गॉड, यू हैव टू ऑलवेज रिफ्लेक्ट ऑन सिलेबस, रिवाइज सिलेबस, बी रिफ्लेक्टिव ऑन सिलेबस। जितना सिलेबस के ऊपर आप रिफ्लेक्ट करेंगे, अच्छा, रिफ्लेक्शन विल बी बेटर इफ you have organized and managed your learning, right, your readings in your notes, isn't it? Then only, otherwise pura reflecting on Lakshmikant, recalling facts, all facts is always difficult. You will have to fix ki these areas which I have to revise regularly and I have to recall in problem solving situation. So ye dhyan rakhiye. Overall, as I said in the beginning also, like purpose of learning should not only be completion of exam, rather development of personality. Over the period of time, all kind of correctedness should be there in your personality, right? Constitutional correctedness, governmental correctedness, legal correctedness. ऐसा jump नहीं करेंगे आप जैसे बाकी लोग कि नहीं नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर, ये तो केवल बोलते रहते, काम नहीं करते, काम। अब आपको अंडरस्टैंडिंग है ना कि the important function of politics and political system is to set the goal, mobilize the people and their motivation for attainment of the goal. Yes or no? And if Prime Minister, travels from one state to another state, isn't it? Right? Participate in this political, processes, phenomena, that also has function of mobilizing motivations of the people, isn't it? तो आपका thinking, आपका orientation will be different. Yes or no? आपका थिंकिंग, हाँ, उसमें यू कैन फाइंड आउट डिसफंक्शन कि मोबिलाइजेशन एट टाइम्स बाय द पॉलिटिकल लीडर्स ऑन कास्ट लाइन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्सन, रीजनल लाइन, कॉम्युनल लाइन इज डिसफंक्शनल। यस और नो? तो आपका काम क्या होना चाहिए? योर ओरिएंटेशन शुड बी एक्सप्लेनिंग द रियलिटी विथ वॉट एवर नॉलेज यू हैव, इज इट? जो नॉलेज है उससे, मतलब एक कॉमनर्स के जैसा चीजों को नहीं ओरिएंट होना है, देखना है, isn't it? Getting your point. You should be ethically correct, environmentally correct, geographically correct, right? अगर अभी रेन हो गया, शुरू हो जाए, प्रॉब्लम फ्लड हो जाए, तो आपको सोचना है कि यस, वाई, वेदर दिस इज मॉनसूनल फिनोमेना और जेट स्ट्रीम फिनोमेना और वेस्टर्लाइज कॉजिंग इन रेन, isn't it, in month of December? Getting your point. अभी कॉमन आदमी के जैसे नहीं कि देखो बहुत अन्याय कर रहे भगवान। Getting your point. Then you have to think, okay, loss of crops, whatever the government policies are there, through which the farmers would be rescued from the losses. Abhi recently in Haryana and Punjab, huge losses, isn't it? So in this direction you have to, right, develop your personality, right? For the time being, as you are in this process, you should be very much, reflective on the syllabus, and by reflecting on syllabus, your GS sociology, you have to understand, you have to explain the facts around you. Getting your point or not? Right? जब तक आप इस प्रोसेस में हैं तो आपको बार बार क्रैश कोर्स करने की जरूरत नहीं होगी। क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं होगी कि आप कोई क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं और इसके बस ऐसे ही डेवलप होता रहेगा पर्सनालिटी। और एक तो आपने लिखा ही है ना, रिएक्टिव नहीं होना है, रिस्पॉन्ड के, या रिएक्टिव नहीं होना है,
रिस्पॉन्सिव होना है, शुड नॉट रिएक्ट, इजंट इट? रिस्पॉन्स से सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा, रिएक्शन से प्रॉब्लम बढ़ेगा, इजंट इट? राइट, सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव, राइट? लाइफ में ऐसे भी, इफ यू आर रिस्पॉन्सिव यू विल बी हैप्पी, इफ यू आर रिएक्टिव यू विल बी अनहैप्पी, है ना? सिंपल। रिस्पॉन्सिव होंगे, सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करेंगे, हैंडल करेंगे सिचुएशंस को, हैप्पीनेस, ऑल हैप्पीनेस। अगर नहीं तो फिर प्रॉब्लम, राइट? प्रॉब्लम, है ना? जहाँ से भी देखो, अभी इतना तो सेंस आ रहा है ना कि फंक्शंस भी होता है, डिसफंक्शन होता है, तो क्यों ना हम फंक्शंस को ज़्यादा देखें, लर्न करें। जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया उस दिन कि अब आप माइथोलॉजीज यू आर रीडिंग, you all read mythologies, religious texts and all. Learn positive things from that, isn't it? Right, which will help you in stabilizing your personality, enhancing your personality, right? जैसे आपको रेफरेंस दिया था ना, कृष्ण एंड बलराम. So Balram was, neutral, and he is symbol of non-alignment. There are many such personalities in all religions, right? कभी लेजर टाइम में हमें रिलीजन, माइथोलॉजीज, ये सब को इस प्रिपरेशन प्रोसेस में, और जो उसके पॉजिटिव्स है ना, खासकर पॉजिटिव्स, फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, दैट यू कैन यूज इन पेपर 4, राइट? आजकल बच्चे लिख रहे हैं उसको, है ना? प्रदीप ने भी रेफरेंस दिया कई रिलीजियस टेक्स्ट से एथिक्स में, चूंकि नॉलेज कम था एथिक्स का, बुकिस नॉलेज कम था, तो इन्हांस करना था, आंसर में देना था, इजंट इट? एंड गॉट गुड स्कोर, 112 marks, relatively good score, right? So ऐसा बाकी life related discussion we will do some other time, right? Don't react to the situations and avoid being angry and nervous, right? Avoid being angry and nervous. We are human beings हैं, कई बार हमें गुस्सा भी आता है, isn't it? लेकिन आप ये सोचोगे कि आप ऐसा सोचना कि भाई मैं एक कॉमन मैन नहीं हूँ, आई एम एस्पायरिंग टू बिकम IAS, सिविल सर्विसेज में जाना है, इतनी डाइवर्सिटी ऑफ सर्विसेज में जाना है, तो ऐसा नहीं, मतलब बाकी जैसे लोगों जैसा अपन कॉमन सेंसिकल बिहेवियर नहीं करना है ना? गुस्सा नहीं होना है चीज़ों के ऊपर ज़्यादा, राइट? और गुस्सा होना भी है तो करेक्शन, अपने आप पे गुस्सा होना है, करेक्ट करना है चीजों को, isn't it? करेक्ट करना है, रिस्पॉन्सिव होना है, राइट? सो दिस इज ओके. गुड लक. So good afternoon to all. Good afternoon to Vikas sir and my dear friends. So farewell is the celebration of you. So there will be no competition, no achievement, just discuss, sit, relax and have fun. So the farewell day is the only day when you have got the chance to tell anything to anyone that you had in your heart for a very long time. I am Arpan Garg. I would like to dedicate this farewell party to a person who is actually not a person but an inspiration or a role model and a I'm best not that teacher. big man. अरे नहीं. And the name of the teacher is Mr. Vikas Ranjan sir. Okay, I am here to express my feeling on the behalf of all my friends of Triumph IAS. We have spent the best part of our life in this glorious institution. At this stage, we are all ready to go with our own journey. It will be absolutely different for everyone. Most of us will move to other cities. Some of us will move to the other countries also. Some of us will never meet again. But all we can do for each other is the pray for deep heart. It is said there is no success without a loss. There is a strange world. In order to achieve something, we have to lose many things. Some lose their health, some lose their wealth, and some lose their even part of lives. We are losing our lovely teacher who are the constant source of spiritual inspiration, satisfaction, and encouragement for us, especially for me. Triumph IAS remain a big learning experience for all of us. And we realize
that our primary purpose is to study to gain knowledge and life experiences so that we can get most of the opportunity that are open to us. The thought that is your last day at the institution make all of us emotional. We all have spent some of the best moment of your life here in this institution with Vikas sir. Along with acquiring bookish knowledge, we have all found friendship for a long time. We have all learned to be cool, disciplined, to be punctual, to be relaxed, to be modern, to be legal, rational, scientific. With Vikas sir. Good. We have all learned to take responsibilities and remove mistake with the institution. The bookish knowledge would help you in your career, but our sentiment learned here will help you in making a good life ahead for you and your family and your workplace. I know that for many of us, thinking about the future is an unsettling experience. Moreover, there is something which we'll all like to avoid. Some of us undertake procrastination whenever the talk of the future comes up. The future is not something that we should fear. Rather, it is always challenged that we should all gladly embrace. Hopefully, our learning and experience will come to our rescue. Further, I am sure the value of Sir, who have filled with us with so much confidence that we can readily take any of the challenges. So, sir, with due permission, I would like to call our first performer. Good afternoon, sir. Extremely happy to be here and बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया है. Thanks to Trim Pius and एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए Trim Pius के लिए एक बार. दोस्तों, मेरे मन में बार बार सिर्फ एक ही ख्याल आता है. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं. बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं. कोई कलेक्टर कोई कलेक्टर बनके नाम करेगा, कोई आईपीएस बनके काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. Okay, thank you. I would like to thank our teacher for your teaching and blessings, and all the faculties of Trim Pius, Rupika ma'am, Rakhi ma'am, and Sunil sir, and all the faculties, all the cameramen, Arfan sir. Arfan. So, thank you for having me, and thank you all. Okay. Now, I would like to call our next लिंक कर performer. रहा है.
So I am here to share my experience. So myself, Harshad Markar, I come from Maharashtra of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Dr. B.R. Ambedkar, Lokmanya Tilak. महाराष्ट्र के ही होंगे ये तो मतलब रीजनलिज्म नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग समथिंग अबाउट माई स्टेट. So I would like to start my conversation by quoting our late Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee ji. Once upon a time he said that वही मंजिल वही खिड़की वही कमरा, वही मंजिल वही खिड़की वही कमरा, राज बदला ताज बदला लेकिन समाज नहीं बदला. और ऐसे बहुत मुश्किल से बदलने वाले समाज को बदलने निकले हमारे ट्राइम्फ आईएएस के स्टूडेंट्स, बहुत इफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स जैसे कि प्रदीप सिंह सर है, जागृति मैम, ऐसे बहुत है, लेकिन मतलब डोमिनेंट के नाम ले रहा हूँ. ऐसे नॉर्मल लोगों को इफिशिएंट बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसे विकास सर के साथ जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, टू शेयर दैट एक्सपीरियंस. मुझे मतलब गारंटी है कि अगला प्रदीप सिंह और अगली जो जागृति अवस्थी मैम है यही से निकलना चाहिए. तो जागृति मैम का देख लो, प्रदीप सिंह का तो मैंने बुक कर दिया है. सो जागृति मैम किसको बनना है वो आप डिसाइड कर लो. प्रदीप सिंह तो नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट आई विल ट्राई टू बी प्रदीप सिंह. सो एज यूजुअल जैसे कि मैं मतलब पहली बार दिल्ली में आया तो ओल्ड राजेंद्र नगर वो अग्रवाल स्वीट्स वाला कॉर्नर 200 रुपये दे के वहाँ पे उतरा. तो मतलब कुछ मतलब आइडिया नहीं था कि 100 रुपये में भी आ सकते, 200 रुपये दे के आ गया. तो वहाँ से आ गया तो वहाँ पे उतरा मैं. सो एक्चुअली मुझे ट्राइम्फ आईएएस के बारे में कुछ भी नहीं पता था सर. तो प्रदीप सिंह सर का सुना था लेकिन इतना अवेयर नहीं था कि मतलब सोशियोलॉजी के लिए मैंने तो मतलब वहाँ से आने से पहले ही डिसाइड कर लिया था. अब उन टीचर्स के यहाँ पे नाम लेना सही नहीं है, मतलब जिनका मैंने मतलब ज्वाइन करने का सोचा था. तो बाद में मुझे किसी मतलब आपके ओल्ड स्टूडेंट है वो मिले, उन्होंने मतलब रिकमेंड किया कि आप ज्वाइन मत करो लेकिन एक बार सर से जाके मिल लो. तो मैं एडमिशन लेने से पहले आपसे मिला भी था. तो बाद में मैंने डिसाइड किया कि ट्राइम्फ में ही लेना है अब तो मतलब हाँ. तो वही प्रदीप सिंह सर का सुना था मैं, मतलब 45 डेज में ऑप्शनल प्रिपेयर किए, तो फिर सोचा हमको वहीं पे जाना पड़ेगा. हमारे पास 4 महीने हैं लेकिन जाना तो वही है अभी. तो अभी मेरा मतलब एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है कि मतलब मैं अगर कोई मुझे पूछेगा तो मतलब ऑप्शनल कहाँ करना है, सोशियोलॉजी होगा, तो मैं उसको यही रिकमेंड करूँगा अगर तुमको बस सोशियोलॉजी पढ़ना है तो तुम कहीं पे भी जाओ. लेकिन अगर तुमको सोसाइटी को समझना है, व्हाट सोसाइटी इज, यू शुड, आई विल रिकमेंड विकास सर. मतलब सर मेड मी टू रियलाइज व्हाट सोसाइटी इज. मतलब सर रियली सर, इट्स नॉट जोक. मतलब जैसे कि अभी मैक्स वेबर के टाइम आप बोले थे कि रिक्शा वाला भी पावर एक्सरसाइज करेगा, तो वो हमारे साथ हुआ है. मतलब टू एक्सरसाइज पावर, मतलब एनीबडी कैन एक्सरसाइज पावर. कार्ल मार्क्स को अपोज किया है उन्होंने, तो मतलब बहुत कुछ सीखे है सर आपसे. इन लोगों से भी बहुत कुछ सीखा हो, मतलब जो भी मतलब फ्रिक्वेंटली ये मैम थी कि मतलब फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चन पूछती थी, तो मतलब तब मैं सोचता था कि इनको क्यों डाउट पड़ता है, मतलब मुझे क्यों नहीं डाउट आता, मैं क्यों नहीं पूछ रहा हूँ. तो मतलब मैं यू ऑल हुआ हूँ इस कोचिंग में, इनसे भी बहुत कुछ सीखा हूँ. मतलब आपसे तो बहुत कुछ सीखे, इनसे भी बहुत कुछ सीखे हैं. मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे सीखा हूँ. डाउट पूछना चाहिए, मतलब हाउ टू रिफ्लेक्ट, और बहुत कुछ मतलब यहाँ बहुत कुछ सीखे. अभी लिमिटेड टाइम में उसको एक्सप्रेस करना तो मतलब पॉसिबल नहीं है. बाकी तो एक्सपीरियंस सही रहा है सब कुछ. सो मतलब मैं आपके लिए बुक लेने का सोच रहा था, तो मुझे मतलब एक्चुअली समझ में नहीं आया कौन सा बुक लूँ. तो मैंने ये बुक लिया है, लीडरशिप लर्निंग्स फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज. रीजनलिज्म नहीं कर रहा हूँ लेकिन महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट. तो मतलब मुझे इतना तो गारंटी है कि आप वैसे तो सर को लीडरशिप लर्निंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये देना चाहिए क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस वही तक था. तो लास्ट में सिर्फ यही कहूँगा, हमारे महाराष्ट्र में मतलब वो संस्कृत भी कोट है या मराठी है. हमारे महाराष्ट्र में मतलब गुरु को भगवान समान मानते हैं. तो एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो यही कहूँगा, इसका ट्रांसलेशन की तो ज़रूरत नहीं है. तो मुझे इतनी तो गारंटी है कि जैसे प्रदीप सिंह सर, अभी मैंने उनका वीडियो देखा हाल ही में, वो प्रेसिडेंट हाउस गए थे तो वहाँ पे मतलब स्पीच दे रहे थे. तो अभी तो यहाँ पे स्पीच दे रहा हूँ, लेकिन मुझे इतनी गारंटी है सर मुझे वहाँ तक लेके जाएंगे, मैं वहीं पे स्पीच दूंगा. So I would like to call next performance Amit Singh. Come on the stage. Give a big round of applause.
हेलो, गुड आफ्टरनून सर एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम अमित सिंह पटेल है और मैं गोरखपुर ज़िला से हूँ। और मैं ये जो हेलो मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ वो कविता बिहार के एक सर ने सुनाया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि सुनाना चाहिए। ये एक मिडिल क्लास परिवार और बिलो मिडिल क्लास परिवार के बच्चों के लिए है, और आप लोग जो भी गलती होगी उससे माफ़ी चाहूँगा। आना जाना छोड़ चुके पर्वों से नाता तोड़ चुके, आना जाना छोड़ चुके पर्वों से नाता तोड़ चुके, रख के दिल पे अपने पत्थर घर से हम मुख मोड़ चुके। और किसका दिल करता है घर के सुख चैन गंवाने को, किसका दिल करता है घर के सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम घर छोड़ आए हैं अपने जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ के बसता सपना, नैन में माँ के बसता सपना, मैं काबिल बन जाऊंगा। नैन में माँ के बसता सपना, मैं काबिल बन जाऊंगा। और कर कर के बूढ़ी हो गई है, कभी तो खुशियाँ दिखलाऊंगा। और बाप से मेरे चला ना जाता, बाप से मेरे चला ना जाता, फिर भी काम को जाते हैं। बाप से मेरे चला ना जाता, फिर भी काम को जाते हैं। और मेरा खर्चा भिजवाने के खातिर रोज कमाने जाते हैं। घर वो मेरी टपक रही है, घर वो मेरी टपक रही है, जिसके नीचे हम सोते हैं। घर वो मेरी टपक रही है, जिसके नीचे हम सोते हैं। और जब जब हुआ मेरिट से बाहर वो, जब जब हुआ मेरिट से बाहर में, मुझसे ज्यादा वो रोते हैं। पता है मुझको, पता है रब को, पता है मुझको, पता है रब को, मेहनत में मेरी कमी नहीं। और वो जीवन जीवन क्या यारो, जिसमें जीवन में ठनी नहीं। माना चलती एक कठिन परीक्षा, माना चलती एक कठिन परीक्षा, लड़ना मेरा काम है। माना जीवन चलती कठिन परीक्षा, लड़ना मेरा काम है। गुरुओं से लेके शिक्षा अर्जुन रण को तैयार है, गुरुओं से लेके शिक्षा अर्जुन रण को तैयार है। और सब्र का बइया बांध ना टूटे, सब्र का बइया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा। सब्र का बइया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा। और चंद महीने बाकी है, बन यशस्वी लौटूंगा, बन यशस्वी लौटूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा गाइड किया। और सर की एक मतलब सर से मेरी एक इंटरेक्शन हुआ था, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने नवंबर बैच में एडमिशन लिया था यहाँ पे, और मैं सर से बताया था कि उस समय कुछ मेरी प्रॉब्लम चल रही थी, तो सर ने मेरी बात सुनी। और उसी समय मुझे कोविड हो गया, तो मैं सर का क्लास ही नहीं अटेंड कर पाया और मैं दिल्ली आ भी नहीं पाया। तो मेरी बात हुई यहाँ की टीम मैनेजमेंट से, तो टीम मैनेजमेंट ने मेरा बैच ट्रांसफ़र कर दिया। अब बल्कि मैं 2-4 क्लास किया था, ऑनलाइन किया था। उसके बाद भी राखी मैम ने और रूपिका मैम ने मुझे बोला कि आप आके फर्स्ट डे से क्लास कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास करेंगे, सर से इंटरेक्शन करेंगे तो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने पुराना क्लास कर लिया, उसके बाद भी सर ने मुझे मौका दिया। तो थैंक यू सो मच सर, और आपका आशीर्वाद रहेगा तो पोडियम पे आएंगे, जो सपना लिया है उसको पूरा करके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। क्या नाम है भाई का? हाँ, थैंक यू अमित भाई। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल दीपक ऑन द स्टेज। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सुनिएगा और जज मत कीजिएगा, बिल्कुल भी। ला 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 ला। समय बता रहा, कहानियाँ सुना रहा, नया बैच था वो आज नया ना रहा। समझो तुम लाइनों की ये ताजगी, मार्क्सिस्ट हूँ झलकेगी नाराजगी। ऑप्शनल में सदा से कंफ्यूज था, सोशियोलॉजी मेरे लिए न्यूज़ था। दिमाग है नहीं लगाया ज़्यादा भी नहीं, सुना था सर जैसा सा कोई नहीं। 7:45 की नेक्स्ट में क्लास थी, मेरे साथ बैठी हुई मेरी खास थी। समझाया उसने कॉन्फिडेंस से, तुरंत किया मैंने ज्वाइन, नो ऑफेंस रे। प्रॉब्लम हुई शुरू में ये जानकर, मग अप कर लिया मैंने मान कर।
मार्क्सिस्ट है ये मोड ऑफ प्रोडक्शन, मैक्स वेबर का सोशल एक्शन, डरकिम्स डिवीजन ऑफ लेबर, पार्सन्स का पैटर्न वेरिएबल, ला 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 ला। डेरा लगाया हमने करोल बाग में, टूटी फूटी सी लकीरें लेके हाथ में, लगा चस्का हमें भी यूपीएससी का, पेशेंस कंटिन्यूटी यही सीखा, है मुश्किल समझाना ये बात को, नींद आ नहीं रही मुझे रात को, रिवीजन करूं ठीक है वो भी सही है, एनसीईआरटी हाँ जी सही है, रद्दी हुआ अखबार और ये कोर बुक्स, क्लास नोट्स बोले मुझे भी तो लुक डेली का ये रस्म रिवाज है, परेशान है ये दिल की आवाज है, ला 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 ला। सोचा कर लूं किसी से यही बात हो, होना चाहिए यार कोई साथ तो, एक है तो सही ये वही वाली खास है, नेचर में मिश्री मिठास है, उसकी बातों में जादुई असर है, नाम रख लिया उसका शुगर है, और यार शैलेश और विकास है तो सही ये भी मेरे खास, ला 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 ला। समय बता रहा कहानियां सुना रहा, नया पैच था वो आज नया ना रहा, आउण वालियां जी साडियां भी वारियां, खिची जाने जी असी भी तैयारियां, हुणी पच्चियां पिंडां च सरदारियां, हुणी पच्चियां पिंडां च सरदारियां। थैंक्स। लास्ट लाइन का ये मतलब 25 पिंडा च सरदारी का मतलब 25 विलेज, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो इन 25 विलेजेस योर सक्सेस विल बी चेरिश्ड। तो सर वो ये मतलब था। थैंक्स। हाँ बाकियों को तो नहीं आती ना। चलो जी। Thank you so much, Deepak. What a lovely performance. So I would like to call our next performance, Abhishek Jaiswal. Please give round of applause. Good afternoon, sir, and good afternoon to everyone. तो शायरी वगैरह तो बहुत हो गई, अब मैं थोड़ा सबको एक देशभक्ति गीत के माध्यम से सबका उत्साह मतलब बढ़ाना चाहूँगा, और अगर अच्छा लगे तो तालियां ज़रूर बजाना, और नहीं लगे तो कोई नहीं। तो शुरू में सोच रहा था कि ना जाऊं करके, लेकिन कॉन्फिडेंट तो लाना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन तो स्टेज में आना पड़ेगा, स्टेज फिर ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए आना पड़ा। और स्टार्ट। हम भारत की संतानें हैं, भारत सबकी माता है, हम भारत की संतानें हैं, भारत सबकी माता है, इसका मान बढ़ाने हेतु जीना मरना आता है। सीमाओं के प्रहरी बनकर हमारी दल से भिड़ जाएं, सीमाओं के प्रहरी बनकर हमारी दल से भिड़ जाएं, सर्दी गर्मी भूख प्यास बरसात सभी कुछ सह जाएं, बंसी तजकर युद्ध भूमि में शस्त्र उठाना आता है, इसका मान बढ़ाने हेतु जीना मरना आता है। हम भारत की संतानें हैं, भारत सबकी माता है, इसका मान बढ़ाने हेतु जीना मरना आता है। पंचतत्व के इस तन को प्रभु जीवन मूल्यों से भरना, पंचतत्व के इस तन को प्रभु जीवन मूल्यों से भरना, मन बुद्धि और प्राण आत्मा निर्मल इनको प्रभु करना, सेवा और समर्पण द्वारा हर मन हरना आता है, सेवा और समर्पण द्वारा हर मन हरना आता है, इसका मान बढ़ाने हेतु जीना मरना आता है। समरसता का भाव जगा निज सबको एक बनाएंगे,
समरसता का भाव जगा निज सबको एक बनाएंगे, जाति पंथ और वर्ग प्रांत का जड़ से भेद मिटाएंगे। अवरोधों में अंगद जैसा पैर जमाना आता है, अवरोधों में अंगद जैसा पैर जमाना आता है। इसका मान बढ़ाने हेतु जीना मरना आता है। हम भारत की संतानें हैं, भारत सबकी माता है। इसका मान बढ़ाने हेतु जीना मरना आता है, जीना मरना आता है। थैंक यू, थैंक यू सर। Now, I would like to call Chetan Agarwal for a singing performance. Okay. Give a big round of applause. गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक गज़ल गाने की कोशिश करूँगा। ये उस्ताद ज़ौक़ की गज़ल है। उस्ताद ज़ौक़ वाज अ कोर्ट पोएट इन बहादुर शाह ज़फ़र's कोर्ट and contemporary to Ghalib. So, and this composition is from the person whom I learned music from, late Shri Chotilal ji. आँखों में चरागों के, आँखों में चरागों के उजाले ना रहेंगे। आ जाओ के, आ जाओ, आ जाओ के फिर चाहने वाले न रहेंगे आँखों में। इसका एक शेर सुनाऊंगा। तो हम सब अब जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन वो बहुत रिलेटेबल है अभी इस मोमेंट में। जा शौक से मगर, जा शौक से मगर पलटाने के लिए जा, जा शौक से मगर पलटाने के लिए जा। हम देर तक अपने को संभाले न रहेंगे आँखों में चरागों के उजाले न रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं अपना 2 मिनट का एक्सपीरियंस है जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस करा है दिल्ली में सर के साथ, विकास सर के साथ और सभी दोस्तों के साथ, वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा मैं। एक तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो ORN का माहौल है बड़ा अजीब है यार। एक तो यहाँ पर देख के बड़ा ना डर लगता है, इतने सारे लोग घूम रहे, मतलब अजीब ही। और इतनी सारी किताबें देख के तो और दिमाग खराब होता है, और ऊपर से यहाँ के लैंडलॉर्ड और ये जो ब्रोकर है उनको देख के तो और दिमाग खराब होता है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो मेरा कुछ नहीं रहता था, मैं क्लास में बैठता था और क्लास के बाद चुपचाप सर, जैसे बच्चे जो डाउट्स पूछने जाते थे तो चुपचाप सर को सुनता था कि अच्छा सर इसको क्या बता रहे हैं, सर उसको क्या बता रहे हैं। और कुछ नहीं, रोज जो सर एक चीज़ बताते थे ना वो एक डोज की तरह मैं लेता था, खाता था और आराम से मोटिवेशन के साथ घर जाता था। तो इस सफ़र में सर की जो रोज स्पीच थी वो मेरे लिए एक डोज की तरह काम कर रही है। अगर सर नहीं होते और सर की स्पीच नहीं होती और सर की मोटिवेशन नहीं होती तो मुश्किल ही था कि मैं 1-2 महीने टिक पाता यहाँ पर, क्योंकि मेरा तो ये हो गया था कि बस 15 दिन में मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके वापस जाने वाला था। हाँ, देहरादून।
यही यही मेरे क्या हम सबके विकास सर थे, जिन्होंने स्पेशली मुझे तो काफ़ी बूस्ट करा है। जब वो स्टूडेंट की बात बताते थे, एग्जाम्पल्स देते थे, स्ट्रैटेजी बताते थे, प्लानिंग बताते थे, छोटी छोटी ट्रिक्स बताते थे, वो बहुत मोटिवेट करती थी। और उससे ये लगता था कि हाँ यार, एग्ज़ाम तो मैं भी फोड़ सकता हूँ, मैं भी क्लियर कर सकता हूँ। तो इतनी कोई बड़ी चीज़ है नहीं जितना यहाँ के एटमॉस्फेयर ने बना रखा है। ये तो मुझे इन 4-5 महीनों में ये बात समझ में आ चुकी है। सर की एक और अच्छी बात मुझे लगी, एक तो सर बहुत कूल है, हम्बल है, और सर को मैंने कभी गुस्से में नहीं देखा। कभी ये नहीं ए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। मतलब बहुत ही कूल, क्या बताऊं मैं, मतलब कुछ शब्द नहीं है ये सब बयां करने के लिए मेरे पास। सर आपसे बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखना बाकी भी है। सर मैं साईं से प्रे करता हूं कि हमारे विकास सर को लंबी उम्र दे, उनके परिवार को स्वस्थ रखे, उनके इंस्टीट्यूशंस को लंबी ऊंचाइयां मिले, और सर की ब्लेसिंग हमेशा मुझ पर और मेरे दोस्तों पर बनी रहे। धन्यवाद। अब मैं सर को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। सर हमें एक मोटिवेशन स्पीच देकर विदा करेंगे और हम भी सर का आशीर्वाद लेकर विदा लेंगे। सर प्लीज़ कम ऑन स्टेज एंड यस, विदा तो लेना पड़ेगा। और अभी ये बुक देखने के बाद अभी मैं इंक्विजिटिव हो रहा हूँ कि कब इसको फिनिश करूँ कब इसको कंप्लीट रीडिंग हो इसकी। और आज टाइम है, फिर कल से क्लास हो जाएगा। सो विल ट्राई टू रीड दिस बुक टुडे एंड लर्न समथिंग। ओके, सो बहुत सारा ज्ञान आपको दे चुका, एंड हैप्पी टू सी कि यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑडियंस ऑल्सो, राइट? And it is, I mean, audience की responsibility is always higher than that of those who are at podium, right? And you have been great, excellent, I will say, student, good listener, learner. And look, motivations comes from my students, you know. इतना कई बार बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत हेक्टिक रहता है मॉर्निंग में। आई मीन जल्दी जल्दी फिनिश करके, और कई बार आज भी राखी है शायद यहाँ चली गई, तो मैंने मैसेज किया कि बिस्किट और चाय, आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया, लेकिन मोटिवेशन ऐसा था कि नहीं, पहुँचना है तो मैंने मैसेज किया कि बस 4-5 बिस्किट और चाय मंगा देना। ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया, ये भी मेंशन कर दिया कि मिस ना करे क्योंकि वो जरूरी है। लेकिन ये सब ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और मोटिवेशन रहता है कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बाय ग्रेस ऑफ साईं, आई गॉट एक्सेलेंट स्टूडेंट्स, यू नो। मतलब वो 4-5-6 स्टूडेंट्स जो बिगिनिंग में थे, एंड मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, आई एम इंडेप्टेड, हाईली इंडेप्टेड टू माय स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, कि जिनका उस समय जब कोचिंग्स मतलब कि कॉरपोरेट्स बड़े कोचिंग ही होते थे, और आपको अगर टीचर बनना है तो इन कॉरपोरेट्स के यहाँ ही काम करना होता था, और अपना ये था कि नहीं, स्टूडेंट के साथ लर्न करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो इनिशियली सम स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र हैड ट्रस्ट ऑन मी, आई गॉट रिजल्ट, है ना। फिर उसके बाद बाकी लोग भी जानने लगे, फिर धीरे धीरे तो स्टार्टिंग विथ 4 अभी मेंस के समय ऐसा होता है कि जब नहीं प्रॉमिस कर पाता कि नहीं, तो बस डायरेक्ट मेरे पास कोई कॉल करता है, मैं उसको डायरेक्ट पेपर भेज देता हूँ और बोलता हूँ कि वहाँ मत बताना, इंस्टीट्यूट पे नहीं बताना, तुम डायरेक्ट मुझे लिख कर भेज देना। कई एक बच्चे का रिव्यू खुद से ही डायरेक्ट पेपर भेज दिया, रिव्यू करके उनको दे दिया, बस ये बोल दिया कि बस तुम लर्न कर लो, और अगर कुछ दे पाए मुझे तो परिणाम अपने लिए दे दो, है ना, रिजल्ट अपने लिए। आपका अच्छा होगा तो समाज का अच्छा होगा, और मेरी बात भी सार्थक तभी हो पाएगी, इज़न्ट इट, जब आप अच्छा करके कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी के। एंड दैट इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन। Meeting and partying are the ways of life, and here we are not partying, you know. We are just separating for few days, right? As I said, my hand holding will continue, right? From day one, I'm suggesting you to develop your personality, be reflective. जो भी learning है, आपका knowledge है ना, उसके अपनी personality में लेकर आना है ना।
life is not only about just cracking this exam. It is more than that ना, केवल एग्ज़ाम नहीं. अगर आपके घर में आपकी सिस्टर आपसे खुश हो जाती हैं, आपकी बहन, आपके सिबलिंग्स आपसे हैप्पी होते हैं, पेरेंट्स हैप्पी होते हैं, है ना, आपका नेबरहुड आपसे हैप्पी होता है कि आप पार्किंग के लिए उसको पंचिंग नहीं करते, है ना, है कि नहीं. अदरवाइज दिल्ली में डेली पार्किंग के लिए इश्यूज होते हैं, डेली मर्डर्स भी हो जाते हैं कई बार. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. जो लोग ऐसा होंगे उसको आप समझाओगे कि ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं होता, मतलब उसको आप सोल्यूशन बताओगे. ऑलवेज बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड इन योर लाइफ, नॉट प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड. सभी चीज़ का सॉल्यूशन है ना, सभी चीज़ का सॉल्यूशन है. और जब हमारे पास गांधी हैं, अभी देखा पीएम साहब गए, बोले कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और उनके वर्ड्स वेर हिज वर्ड्स repeated by more than 20 national heads, world leaders in UNGA. Yes or no? Right. So this is, जब हमारे पास गांधी हैं, अम्बेडकर हैं, हमारे पास ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं, गौतम बुद्धा है, महावीरा हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? ये सब तो सॉल्यूशन देकर गए हैं. पूरी दुनिया में गौतम बुद्धा ने जाकर सॉल्यूशन दे दिया. जो कन्फ्लिक्टिंग कम्युनिटीज़ थी ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, isn't it? See, civilization has developed there, isn't it? So we have contributed to development of civilization, isn't it? Why can't we contribute to our society, making our society a better place to live? Our own society, yes or no? Our own neighborhood, our own village, rural areas, जहाँ से भी जैसे भी हो सकता है कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे. और ऐसा नहीं होता बिगिनिंग कि अच्छा ये होगा तो मैं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं. As I said, I hardly had 4 or 7 students in my first batch when I started, right, 4 or 7. ठीक है. और तब जो मोटिवेशन था आज भी वही मोटिवेशन. ऐसा नहीं था कि उसमें मोटिवेशन कम होता था, तब भी ऐसा ही मोटिवेशन होता था, तब भी मतलब रूटीन ऐसा ही था, ऐसा ही मतलब रूटीन जो शुरू. और अब तो एकदम से हैबिट हो गई है, लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया है. ऐसा नहीं कि 12:30 तक अगर मैं पेपर रिव्यू नहीं कर रहा हूँ तो ऐसे ही सो गया. कुछ लर्न करना, अभी जैसे ये सब लर्निंग, राइट, जितना है सब. सो दिस इज अच्छा पर्सनालिटी डेवलप करेंगे आप, आई होप सो. एंड दैट पर्सनालिटी, द पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स विल इम्प्रूव योर अडेप्टेशनल कैपेसिटी. यू विल अडाप्ट टू एनी सिचुएशन, right? No situation is going to be difficult for you in life. You are reflective on what you have learned from my class, right? No situation is going to be difficult for you, right? Be that private sphere of family or public sphere of life, isn't it? Public spheres of life, private sphere से लेके public sphere तक, है ना. और अभी आप में से किसी ने कहा कि समझने का कोशिश, हमेशा हमें समझने का कोशिश नहीं करना चाहिए. हमेशा हमें वैज्ञानिक नहीं रहना चाहिए, है ना. जो समझ में आ जाए वो विज्ञान है, सोशियोलॉजी या साइंस. लेकिन कई बार फैमिली में, सोसाइटी में हमें नासमझ बन के भी रहना चाहिए. उसमें भी बहुत नासमझ बन के भी यू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, है ना. ऐसा नहीं है कि जो बहुत समझदार नहीं है ना, जिसको आप देखते हैं कि अरे ये रिक्शा खींच रहा है, ये ऑटो चला रहा है, ये ड्राइवर है, इज़ इट, है ना. बस्ती वालों की भी हस्ती होती है अपनी, है ना. ऐसा नहीं है कि हस्ती केवल सबकी हस्ती होती है ना. उसको कभी हमें मूर्ख नहीं समझना चाहिए कि जो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ है अपने लाइफ में, तो उसको हम मूर्ख नहीं समझेंगे. वो मूर्ख नहीं है ना. वो भी अपने तरीके से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी को, राइट. वो भी दे रहे हैं सोसाइटी को कुछ, राइट. तो हमेशा हर जगह हमें बहुत मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं हमें वो शायर टाइप भी बिहेवियर करना है, राइट. ना समझना है ज़्यादा दूसरों को, ना खुद को ज़्यादा समझाना है. जहाँ ज़रूरत है वहाँ समझाएंगे लोगों को, है ना. जैसे जनरली फैमिली में कई बार हमें थोड़ा इग्नोरेंट भी होना होता है ना. बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना होता है, राइट. अगर पेरेंट्स कंप्लेनिंग है बहुत चीज़ों को लेकर, ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा. अच्छा, पेरेंट्स कई बार मैं आज ही मैसेज देख रहा था, आज ही कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर, वन स्टूडेंट फ्रॉम पाटिल,
प्रतीक पाटिल, कई स्टूडेंट्स का कि सर थोड़ा फैमिली का प्रेशर, जॉब को लेकर फैमिली का प्रेशर, ऐसे सबका एक्सपेक्टेशन है ना। आप जिस उम्र के जिस दौर में हैं, पीपल आर एक्सपेक्टिंग, इजंट इट। अब आपको ये थोड़ा सा स्किल डेवलप करना होता है कि हाउ टू कन्विंस अदर्स, यू नो, राइट, एंड मेक द सिचुएशन मोर अडाप्टिव फॉर यू, राइट। जो आप लोग हैं, राइट, फर्स्ट सिटीजन जिसको सोसाइटी बोलता है सेकंड सिटीजन, राइट। सेकंड सिटीजन किसने बोला था? गेल ऑमवेट वुमेन को बोलते हैं सेकंड सिटीजन इंडिया में, लेकिन मेरा मानना है फर्स्ट सिटीजन। अगर वो नहीं है तो बाकी सिटीजन नहीं है ना। तो कई बार प्रेशर होता है फैमिली का, सोसाइटी का, नेबरहुड का, कि बस अब मैरिज है, जो सोशल कल्चरल ट्रेडिशन चला आ रहा है ना, उस पर कंप्लेनिंग नहीं होंगे, एंटागनिस्टिक नहीं होंगे, इजंट इट, राइट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट, मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड, यू नो, राइट, and establishing your identity, right? So this is, so Sai bless you, God bless you all. This is farewell. I will suggest you do well, do fair, do good in your life, right? And my hand holding will continue for life, right? Okay.